Hello everyone, how are you? Hope you all are well. Today, I am here with a chapter An Amazing Ancestor. An ancestor which was really amazing from the book Communicate in English of Ratna Sagar publication. Before starting that chapter, uh, you all think just one thing. Whatever the phone you are having, smartphones, computers, laptops, whatever computers, you have the keyboard, whether it is on a screen or a physical keyboard, you have the keyboard. Have you ever thought the alignment of the word, the placement of the word, why are they like so? Because alphabetically we study A, B, C, D, E, and there are Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. नहीं तो ये अलाइनमेंट क्यों है, ऐसा क्यों रखा गया? एक्चुअली it was taken from the typewriter, and typewriter is the ancestor of personal computer और स्मार्टफोन हम कह सकते हैं, बिकॉज वही सारे कीबोर्ड्स हमारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं, लैपटॉप्स में, आईपैड्स, मैकबुक्स, एवरीवेयर, राइट? सो इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग what are why they have decided to put the words, letters in such a way, not like alphabetically order A, B, C, D. We will be reading this chapter. Okay, so without wasting your time, let's start the chapter An Amazing Ancestor from the book Communicate in English of Ratna Sagar publication. An amazing ancestor, which we have to study today. Let's start. Do you know the relationship between a typewriter and QWERTY keyboard? QWERTY keyboard is the keyboard which we have in our smartphones, in our computers and laptops. Its name is QWERTY because it starts with QWERTY. That is why its name is QWERTY. So let's start discussion. Many children have never seen it, yet without the typewriter, there would not have been a computer as we know it. No? Many children have never seen it. I think most of you have not seen haven't ever seen the typewriter. No? But if typewriter नहीं होता अगर, so it would not be possible to have a computer in the way which it is now. जिस तरह से कंप्यूटर है हमारा, हो सकता है कंप्यूटर कुछ तो इन्वेंट हो ही जाता, लेकिन इस तरह से नहीं होता. दैट इज वी आर प्रीटी श्योर. वाई? बिकॉज कीबोर्ड्स नहीं होते वैसे. द टाइपराइटर इज द एंसेस्टर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज सच मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ऑब्वियसली कंप्यूटर इज वेरी मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इवन स्मार्टफोन्स आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, और उसके बिना क्या ही हो सकता है. डिड यू एवर वंडर वाई कंप्यूटर कीबोर्ड्स have the strange layout that they have with the QWERTY key across the top left? The answer lies buried in decision made more than 100 years ago when the typewriter first appeared. Have you ever thought, which I told you in the beginning of the video, कि क्या आपने कभी सोचा है कि why the placement of the letters are in that way in the keyboard of a computer? इसका जो आंसर है ना, is buried, ये बहुत पहले दबा हुआ है. कहाँ पे? टाइम्स अगो, ईयर्स अगो, सेंचुरीज अगो, जब टाइपराइटर इन्वेंट हुआ था. देखते हैं क्या था. द प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन दिस ऑड वे. ऑड वे मीन्स थोड़ा अजीब. ऑब्वियसली हम ABCD पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे QWERTY है. सो द प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन दिस ऑड वे in the QWERTY keyboard was intended to prevent frequently struck keys from colliding. Thus, E was next to W and so on. Why the letters are placed in such an odd way? Because the words which are used frequently together, जो लेटर्स या वर्ड्स बार बार साथ साथ यूज होते हैं, उन लेटर्स को पास में नहीं रखा गया है, सो दैट कि हम जब फास्टली टाइप करें तो वो कोलाइड ना हो. दैट इज वाई W के साथ E के बाद W, Q के बाद W, W के बाद E, इस तरह से रखा गया है.
ताकि हम ज़्यादा फास्ट भी टाइप करें तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े, वर्ड्स कोलाइड ना हो, एक दूसरे टकराए ना. एज पीपल बिकेम इवन फास्टर टाइपिस्ट, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन. ऑब्वियसली हम कितना भी फास्ट कर ले टाइप, अगर वर्ड्स ऐसे लेटर साथ साथ होते जिनका यूज़ साथ साथ होना है तो ऑब्वियसली हम कंफ्यूज हो जाते. प्रेस कोई और करना होता, कर कोई और देते. एंड दैट इज़ वाई ऐसा किया गया. एंड दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन. ऑब्वियसली द QWERTY keyboard also became popular because it was the first keyboard and was manufactured by Scholz and Glidden. Scholz and Glidden were two people जिन्होंने कीबोर्ड को इन्वेंट किया था. एंड देयर वाज वन मोर रीज़न कि बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये पहला कीबोर्ड था. इट वाज द फर्स्ट कीबोर्ड और फर्स्ट टाइपराइटर, वॉट एवर यू से. द लेट 19th century saw continued प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स. और 19th सेंचुरी के एंड तक अब एक ने इन्वेंट कर दिया, अब सब लोगों ने तो कुछ ना कुछ जो जो प्रॉब्लम्स थी, खामियाँ थी, उसको सुधार करके इम्प्रूव करके और ज़्यादा चीज़ें बनने लगी और अच्छे अच्छे कीबोर्ड्स बनने लगे इन द लेट 19th सेंचुरी, 1890 या 1895 तक. द फर्स्ट मॉडल्स अपीयर्ड अराउंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी. मतलब और फर्स्ट मॉडल टाइपराइटर कब अपीयर हुआ, जब वो सेंचुरी बदल गई, दूसरी सेंचुरी आ गई. वी केम इन 20th सेंचुरी बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ. इट वॉज नॉट अंटिल द 1930s when electricity was more, wait a minute, more common. The company IBM came on the scene with the electric typewriter. 1930 से पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज 1930 में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये काफ़ी एक कंपनी आई IBM विच हैज़ प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर और वो काफ़ी फेमस हुआ. द नीड फॉर स्पीड एंड ऑटोमेशन लेड टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टाइपराइटर्स. और since someone started, the people started typing on that keyboard, तो उसमें क्या था, थोड़ा उसकी स्पीड ज़्यादा स्मूथ करनी थी और फास्ट करनी थी, और ऑटोमेशन, कुछ ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिक होनी थी जो हम खुद से ना कर पाएँ. और इन चीज़ों की वजह से उसके और फर्दर डेवलपमेंट्स हुए. सच वॉज द एंथुजियाज्म मीन्स एक्साइटमेंट यू कैन से ऑफ द अर्ली यूजर्स. और इतने एक्साइटमेंट थे बहुत, जब अर्ली यूजर्स इन द अर्ली एजेस पीपल यूज टू यूज़ दैट टाइपराइटर, तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते थे वाइल यूजिंग दैट. वन ऑफ द दीज वॉज मार्क ट्वेन who wrote to his brother in 1875. और उन्हीं यूज़र्स में से एक यूज़र थे मार्क ट्वेन, जिन्होंने अपने ब्रदर को एक लेटर लिखा था इन 1875. व्हाट वाज द लेटर, लेट्स स्टडी. द मशीन हैज़ सेवरल वर्च्यूज. मशीन के पास द मशीन हैज़ सेवरल वर्च्यूज, मतलब कई तरह के हैं आते हैं ये मशीन. द ब्रदर ऑफ मार्क ट्वेन wrote to his brother about टाइपराइटर, कि टाइपराइटर क्या है, कैसा है. उन्होंने लिखा था द मशीन हैज़ सेवरल वर्च्यूज, आई बिलीव इट विल प्रिंट फास्टर देन आई कैन राइट. जितना तेज मैं लिख सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा फास्ट स्पीड से ये टाइप करेगा. वन में लीन बैक इन हिज चेयर एंड वर्क इट. मतलब कोई आसान सा ऐसे चेयर पे पड़ा हुआ आराम से लीन बैक करके और ये वर्क कर सकता है. इट पाइल्स सो मेनी वर्ड्स on one page. Piles means ढेर लगाना, right? So it piles so many words, बहुत सारे words को एक ही पेज पर लिख देता है. And it don't must is the old word used for mess. It don't must, since the letter was written in 1875, तो उस टाइम ये ओल्ड टाइम में mess को must बोला जाता था. It don't must things, मतलब चीज़ों को बिखेरता नहीं, खराब नहीं करता. और scatter ink, ना ही इंक बिखेरता है. Blots around. Sometimes when we write by using a ink pen, तो क्या होता है, इंक के ब्लॉट्स छींटे कहीं कहीं पड़ जाते हैं, तो ये ऐसा भी नहीं करता. ऑफ कोर्स इट सेव्स पेपर, और ऑब्वियसली पेपर तो सेव करता ही है बिकॉज वी हैड स्टडी ना, इट पाइल्स सो मेनी वर्ड्स ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर. Although the electric typewriter took over like the manual typewriter, but it was far from silent. जो मैनुअल टाइपराइटर था पहले का इन्वेंटेड, व्हेन समवन वाज टाइपिंग वो बहुत शोर करता था. देन IBM कंपनी केम और उसने इलेक्ट्रिक टाइपराइटर लाया, तो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर बिकेम इवन मोर फेमस और उसने मैनुअल टाइपराइटर की जगह ले ली. बट स्टिल शोर उसमें से भी कम नहीं हुआ था, साउंड उसमें भी था. उसमें भी वो दैट वाज फार फ्रॉम साइलेंट, लेकिन उसमें भी कहीं साउंड की कोई कमी नहीं थी, साउंड उसमें भी था. द वेरियस साउंड ऑफ टाइपराइटर वर मोर
were one of the most memorable byproducts of the age of typewriter. जो टाइपराइटर के साउंड से different typewriters had different sound that were one of the most memorable byproducts. Byproducts क्या होते हैं? When we are trying to make something, और वो चीज़ तो बनती है, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बन जाती हैं, that is called बाई प्रोडक्ट. जैसे रेस्पिरेशन में व्हेन वी रिस्पायर सो वी नीड एनर्जी, लेकिन साथ साथ CO2 भी बाहर निकलता है. व्हेन प्लांट्स मेक फूड दे नीड देयर फूड, बट वाइल मेकिंग देयर दैट फूड बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है जो हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट. बना कुछ और रहे हैं, वो तो बन रहा है, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बन गई, दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट. सो साउंड जो था ना टाइपराइटर का, दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट मेमोरेबल बाई प्रोडक्ट्स द टाइपराइटर्स हैड. दिस एज केम टू एन एंड. अब ये जो टाइपराइटर का एज था अब वो खत्म होने लगा. कब? विद द एडवेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. एडवेंट मीन्स अराइवल. कब शुरू हुआ? पर्सनल कंप्यूटर के अराइवल के साथ साथ वो खत्म होने लगा. द इलेक्ट्रिक बिकेम इलेक्ट्रॉनिक. अब जो चीज़ें इलेक्ट्रिक थी, द appliances which perform on electricity is called electrical appliances, and the appliances which perform on electrons are called electronic appliances. तो अब जो चीज़ें इलेक्ट्रिक थी वो इलेक्ट्रॉनिक बन गई जब से कंप्यूटर आया. द फिजिकल बिकेम डिजिटल. और जो चीज़ें फिजिकल थी हमारे पास, फिजिकल जिसे हम टच कर सकते हैं, बिकेम डिजिटल जिसे हम बस देख सकते हैं. लाइक वर्ड्स ऑन द स्क्रीन, व्हाट वी राइट, कैन वी टच इट? अभी जो स्क्रीन पे आप मेरे वर्ड देख रहे हैं, क्या आप उसे टच कर सकते हो? नो, नेवर. यू कैन टच योर स्क्रीन, लेकिन उस वर्ड को नहीं टच कर सकते. दैट इज डिजिटल, नॉट फिजिकल. तो उस टाइम कंप्यूटर के आने से फिजिकल चीज़ें डिजिटल होने लगी. A set of typewriter keys are pressed, but what is now recorded are bits and bytes that were saved on disks of all sorts, transmitted over great distances, and much easier than ever to correct. पहले क्या था? People used to press the button और वो चीज़ें टाइप हो जाती थी. But now we need to press a set of letters in the typewriter और the keyboard. और क्या होता था? अभी जो चीज़ें रिकॉर्ड होती थी वो प्रिंट नहीं होती थी, दे वर रिकॉर्डेड इन बाइट्स एंड बिट्स आर द यूनिट ऑफ मेमोरीज. उसमें रिकॉर्ड होती थी और उससे ग्रेट डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर तक भी हम उसे ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते थे, सेंड कर सकते थे, ट्रांसमिट कर सकते थे. मच ईजियर देन एवर टू करेक्ट. और बहुत ही ईजी होता था करेक्ट करना, बिकॉज पहले सीधा एक बार जो हो गया प्रिंट हो गया, वी कैन नॉट मेक इट करेक्ट करेंगे तो उसके निशान आ जाएंगे. बट हियर वी टाइप डिजिटली और जहाँ गलती होती थी तुरंत से चेंज कर लेते थे. ये चीज़ें होने लगी. लाइक नाउ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं और बैठ के इजीली पढ़ पा रहे हो, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, दिस ऑल थिंग्स. तो यही चीज़ें उस टाइम भी होने लगी और टाइपराइटर धीरे धीरे कम होने लगा यूज़ उसका. मोर रिसेंटली इवन द कीबोर्ड ऑन मोबाइल फोन्स हैज़ बिकम डिजिटल. हाँ, आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे जो कीबोर्ड है इन द स्मार्टफोन्स, डू यू हैव अ रियल कीबोर्ड, अ फिजिकल कीबोर्ड? नो. हम लेटर्स को नहीं टच करते, हम स्क्रीन को टच करते हैं. डिजिटल कीबोर्ड आ गया मोबाइल फ़ोन पे भी. अ ब्राइट Little did the inventors know where the keyboard would one day be found. और इसके जो इन्वेंटर्स थे कीबोर्ड्स के, उन्हें शायद ही पता था कि उनकी जो इन्वेंशन है वो कभी इस जगह पे पहुंचेगी. जैसे आजकल उनकी इन्वेंशन हमारे पॉकेट में है. वी आर कीपिंग द स्मार्टफोन्स एंड इट इज़ इन आवर पॉकेट. तो उनकी इन्वेंशन को पॉकेट में रख ले रहे हैं. सो लेटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कभी इन्वेंटर्स ने नहीं सोचा था. वॉट हैज़ नॉट चेंज हाउ एवर इज़ द आइडियल इन्वायरमेंट फॉर ट्राइंग टू राइट समथिंग. बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थ्रू आउट द ईयर्स एंड सेंचुरीज, लेकिन जो चीज़ चेंज नहीं हुई वो क्या हुई? द आइडियल इन्वायरमेंट टू राइट समथिंग. जो एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए लिखने के लिए कुछ, वो चीज़ें चेंज नहीं हुई. यस, क्या चाहिए? व्हाट इज़ एन आइडियल इन्वायरमेंट? अ ब्राइट लैम्प एंड अ कंफर्टेबल चेयर इन फ्रंट ऑफ अ टेबल और डेस्क आर एज डिज़ायरेबल नाउ एज दे वर यस्टरडे. एक अच्छा सा कंफर्टेबल चेयर, डेस्क, एक ब्राइट लैम्प, ये आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर ट्राइंग टू राइट समथिंग, जब जितने वो आज से 100 ईयर्स या 200 ईयर्स पहले थे. ये चीज़ें चेंज नहीं है. वेदर अ टाइपराइटर और अ लैपटॉप, द ह्यूमन चैलेंज इज द सेम. चाहे आप टाइपराइटर पर टाइप करें, वेदर यू राइट विद अ पेन, पेंसिल और अ लैपटॉप, व्हाट इज़ द ह्यूमन चैलेंज?
that putting thoughts into words for someone else to read it. अपने thoughts को words में convert करना so that कोई इंसान उसे easily पढ़ सके. And that was then also a challenge. जो नहीं पढ़े होंगे, those who were illiterate and do not know how to write their thoughts into words, तो वो कैसे टाइप कर पाएंगे? ना ही वो टाइपराइटर पे, ना ही वो कंप्यूटर पे, ना ही वो किसी पेन या पेंसिल से पेपर पर लिख पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. एंड ऑफ कोर्स विदाउट लिटरेसी देयर वुड बी नो टाइप रियल और डिजिटल. और अगर लिटरेसी नहीं होता, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो कोई टाइप नहीं होगी, ना ही वो रियल टाइप होगी डिजिटल जो हमारे बुक्स फिजिकल जो हमारे बुक्स वगैरह में होते हैं, और ना ही डिजिटल विच यू आर सीइंग ऑन माई स्क्रीन. दोनों में से कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी. So that was all about this chapter. I have uploaded the question answer, the exercise of this chapter, ancestor, an amazing ancestor, from the book Communicate in English, Ratnasara publication. Or but that is in the description box. There is a link and you need to touch the link. Then a new window will open on your screen और फिर वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं. You can write the question answers, exercises, everything. Clear? So I hope you all understood well, and if you understood, let me know by subscribing, sharing, commenting, liking, these all things. Clear? Okay, see you again with a new chapter. Till then, bye. Bye bye.